ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਦਰਸ਼ਕ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਸਰੋਤਾ ਜਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਔਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰੰਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰਜਨਾਂ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਔਰ ਪੂਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਾੜੀ ਗਈ, ਲੂਹੀ ਗਈ, ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਤੋਸ਼ੇਖਾਨਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਖਬਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਤਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਫੌਜੀ ਅਵਾਰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਵਰੋਲਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਐਸੀ ਵੀ ਸੀ, 5 ਦਫਾ MP ਰਹੇ, ਹਾਵਰਡ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਔਰ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੇਬਾਕ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਦਿਨ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਜਾਂ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਸਵਾਮੀ ਦੋਨੋਂ ਨਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 74 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਜੋਸ਼ ਔਰ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਉਲਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ।
ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਸਰੋਤਾ ਜਨੋ, ਮੈਂ ਗੁਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਲੀਡਰ, ਇੱਕ ਆਗੂ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਸਾਇਕੀ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਔਰ ਫਿਰ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਔਰ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਔਰ ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ स्वामी जी ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। स्वामी जी ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। स्वामी जी, आपकी जो शख्सियत है, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਰਦੇ ਹੋ, ਉਲਟੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਰਦੇ ਹੋ? उल्टे रास्ते नहीं, जब वहाँ जहाँ भीड़ एक रास्ते जा रही है, कभी भीड़ सोचे बिना चल जाती है जी। और हम जैसे लोगों का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक अधिकार बनती है, एक दायित्व है कि हम लोगों को बताएं कि इस रास्ते में जाओगे तो संकट ही होगा और गड़बड़ होगा। जी जी। अब कभी सुनते हैं लोग, कभी नहीं सुनते हैं, फिर बाद में उनको ठीक लगता है। तो ऐसे कई विषय हैं। मैंने शुरू में बताया तो लोगों ने मेरे ऊपर गुस्सा हुए, क्या ये बोल रहा है। मैंने पहले कहा था कि सोवियत रशिया का जो इकोनॉमिक मॉडल है देश को चौपट कर देगा। हमें बाजारी प्रणाली में जानी चाहिए और लोग जमहूरियत से या लोकतंत्र से वही ठीक से बैठता है। तो उस समय सोवियत रूस का बड़ा प्रभाव था इंदिरा गांधी पर, और उन्होंने, उनके सारे अखबारों ने हमें खूब गाली दिया। बाद में हम मिनिस्टर बने और इकोनॉमिक रिफॉर्म लाई, और उसके बाद जो पहले बोलते थे सोवियत रूस के हक में, जैसे मनमोहन सिंह, वो भी हमारे ऑफिसर बने थे, बाद में मिनिस्टर बने, और सब लोगों ने मिलकर एक इकोनॉमिक रिफॉर्म लाकर सारा देश बदल दी। इसी प्रकार से मैंने शुरू से कहा था कि हमारी अच्छे रिश्ते होनी चाहिए चाइनीज से। वो अभी डामाडोल तो चलते रहती है, परंतु लड़ाई होने से दूसरे लोग इसका फायदा उठाते हैं। अमेरिका से भी अच्छे संबंध होनी चाहिए, गुलाम नहीं बननी चाहिए, पिट्ठू नहीं बननी चाहिए। परंतु अमेरिका से ये जो सोवियत रूस के कहने पर हमने गाली गलौज शुरू की थी, वो सब बंद कर देना। ये सारी चीज़ों को लोगों ने पसंद नहीं किया, और इसीलिए आपके सिखों की समस्या भी जब आई, और जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाई, उस समय भी मैं अकेला हो गया था। लेकिन आज सब यही सही वही आपकी इसका मतलब इनहेरेंट पर्सनैलिटी में, जैसे फायर ब्रांड चंद्रशेखर जी, जिन्हें बलिया का भिंडरावाला कहते हैं, तो मतलब आपको हम कह ले कि उसी तरीके से आप चंद्रशेखर जी के साथ रहे। और खास करके 1984 में जो आपका रोल रहा, वो बहुत ही एक बड़ी अजीब सी है, महसूस भी नहीं किया जा सकता। उस समय तो खैर सोचा भी नहीं जा सकता था। मैं उस पर आपसे थोड़ा सा तफसील से मैं कोशिश करांगा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ MP ਬਣੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੀਲਾ ਫਾਈਟਰ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਚੰद्रशेखर और ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਲੱਗਦਾ? जी, तालमेल इस बात से आती है कि आखिर में
गुरु गोविंद सिंह भी देखिए, जी इतना अत्याचार था, सिर्फ 5 लोगों को रखकर उन्होंने देश बदल दी। जी जी तो हम तो समझते हैं कि चंद्रशेखर भी इसी प्रकार के थे। भिंडरावाला की जो लोग ठीक से समझे जी वो भी ऐसे ही बदल जाते थे। जी। वो ज्यादातर जो मेरी बात उनसे होती थी वो नैतिकता पर होती थी जी कि जी। कितने सिख गिर गए हैं, खराब हो गए हैं, उनको कैसे सुधारना है, उनको महिलाओं के साथ कैसा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ड्रग को छोड़ देना चाहिए। जी। उनके सारे प्रवचन में यही बात होती थी, जी। लेकिन बाहर रिपोर्ट उल्टा होती थी। तो हम लोग का हमारी बारी आप थी। उनसे कितनी बार मिले? मैं कुल मिलाकर के 4-5 बार मिला। आपका पहली बार उनसे मिलने का इरादा क्या हुआ, और कुछ घर में या दोस्तों मित्रों ने आपको नहीं कहा कि वो किसके पास जा रहे हैं? हाँ, डराने वाले तो बहुत थे। नहीं, पहली बार मैं मिला जब पार्लियामेंट में पीसी सेठी जब होम मिनिस्टर थे। जी जी उन्होंने उठकर कहा कि खालिस्तान का हेडक्वार्टर्स रूम नंबर 32 नानक निवास में है। जी जी। और उन्होंने फिर कहा कि प्रिंटिंग प्रेस है, ये है, वो है। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना जाकर देखें रूम नंबर 32। जी। तो सब ने कहा कि मत जाओ, वो तो भिंडरावाला के कब्जे में है, वो तो आपको जाने नहीं देगा। तो मैंने हमारी जनता पार्टी के कार्यकर्ता को भेजा भिंडरावाला जी के पास और कहा कि वो पता करो कि मैं आ सकता हूँ और रूम नंबर 32 देख सकता हूँ। तो मैसेज आया कि आयो और मुझसे भी मिल लो। अच्छा। हाँ। तो वो उस समय छत में बैठते थे जी, गुरु रामदास लंगर। तो फिर मैं गया, बगल की बिल्डिंग थी वो नानक निवास। जी जी। वहाँ मैं गया, 32 मैंने दरवाजा खटखटाया। उसकी वीडियो है, कई दूरदर्शन सब में दिखाया था उस समय। और एक लड़का ने दरवाजा खोला और अंदर देखा एक चारपाई और चाय बनाने के लिए एक ये आग की चुनाव है। तो मुझे आश्चर्य हुआ, कहाँ गया प्रिंटिंग प्रेस, कहाँ गया हथियार, कहाँ गया हेडक्वार्टर्स? ये छोटी सी रूम में हेडक्वार्टर गायब कर दिया रहता। हाँ, गायब नहीं, वो हो भी नहीं सकता, वो फिट भी नहीं हो सकता। तो मैं फिर आया, संत जी से मिला जी। संत जी ऊपर बैठे थे, तो उन्होंने सबको बताया हमारे इमरजेंसी का। उन्होंने कहा ये बहादुर है, ये शेर है, ये किसी डरता नहीं है इमरजेंसी में, इसने ये ऐसा क्या वैसा। फिर बैठ के बातचीत की। मैंने कहा कि ये सारा रूम नंबर 32 का ये जो झूठ चल रही है जी, इसको आप खंडन क्यों नहीं करते जी? कहा कि मैं करते करते थक गया, कोई छापता ही नहीं है, इनका तो दिमाग पहले से बन गया है। तो ऐसे फिर मैंने कहा कि उनसे कि ये जो आप खालिस्तान की बात करते हैं जी, ये तो मैं नहीं मानता जी। उन्होंने कहा कि पहले खालिस्तान क्या ये तो समझो। तो मैंने कहा कि आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि जहाँ अच्छे लोग स्वच्छ होते हैं, गंदे आदतें नहीं होती है, ये है हमारी जो पुराने जो पूर्वज है उनके अनुसार रहते हैं जी। और यदि सारा हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हो सकता तो खालिस्तान में हो जाए। तो फिर उन्होंने कहा कि तो थोड़ा विचार की और पंजाबी में, इतना तो समझ में आती थी जी। मैंने कहा कि आप पूरा हिंदुस्तान को ले लीजिए, आप सिर्फ खालिस्तान सारा सिख तो हिंदुस्तान को आज़ाद किया। गुरु टेक बहादुर को अपना गला देने के लिए कोई जरूरत ही नहीं थी, वो तो दूसरा धर्म का सवाल था। उन्होंने क्या नहीं अत्याचार सहन किया। तो वैसे ही आप भी सारा हिंदुस्तान के लिए करिए। तो उन्होंने कहा कि आप हिंदू हैं जी, अच्छा आप तो बाल काट लिया, आपकी तो और देखो चोटी नहीं है। आपसे बोला कि आपकी चोटी का फिर उसने दीवार पर शिव भगवान का फोटो था, उसको उतार के देखो देखो ऐसा है, उनका बाल देखो कैसा है, ऐसे क्यों नहीं है। तो मैंने कहा कि अब फैशन बदल गई है, ठीक है हाँ, बट ऐसा नहीं बदलना चाहिए जो हमारे पूर्वज को भूल जाएं। तो ये शुरू में यही बात हुई। फिर उनका आते रहिए, जब भी आएंगे तुम्हारे लिए रास्ता साफ है जी। मैं तुम्हारी साहस को, तुम्हारी करेज को बहुत मानता हूँ, तो आप आइए जी। और फिर ऐसे ही 2-3 और बार आया मैं।
फिर उनको वो जाकर अकाल तख्त में रहने लगे। जी जी जी। तो धीरे धीरे माहौल बिगड़ते गया, क्योंकि हत्या होते थे और ये कहते थे कि हमारे लोगों ने नहीं किया। जी जी। वहाँ इंदिरा गांधी कुछ भी कर सकती थे। एक दिन मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, मैं एक डिप्लोमेटिक पार्टी में गया। जी। तो रशियन एम्बेसडर थे, उन्होंने मुझे देखकर कहा कि आप तो वहाँ गोल्डन टेम्पल गए जी। और आपने ये भिंडरावाले से मिले जी। संत जी से, तो आपको पता है वो क्या कर रहे हैं? मैंने कहा आप बताइए क्या कर रहे हैं? उनका पूरा रिश्ता CIA के साथ है। अच्छा, ये रशियन एम्बेसडर। हाँ जी। सारा रिश्ता CIA के साथ है जी। और वो यानी देश को तोड़ने चाहते हैं, पाकिस्तान को मदद करनी चाहते हैं। जी। तो मैंने कहा मुझे तो लगता है कि आपका CPM का वो हरकिशन सुरजीत जी, उसका ड्रग ट्रैफिक रुक गया, इसीलिए उसी का प्रॉब्लम होगा, ऐसा कुछ होगा। उसके लिए आप चिढ़ रहे हैं। अब कोई CIA से कांटेक्ट कर रहे हैं तो ट्रांसमीटर होना चाहिए। ट्रांसमीटर के तो हम ट्रैक कर सकते हैं, आजकल तो इक्विपमेंट है ट्रैक करने के लिए। ये कैसी बात आप कह रहे हैं? लेकिन उसके बाद तो कुछ बात नहीं हुई, परंतु मैं सोचने लगा ये रशियन एम्बेसडर को क्यों ही इंटरेस्ट है। जी। तब पता लगा कि 1978 से जी। सोवियत यूनियन के अंदर अब ये सारे रिकॉर्ड्स बाहर निकले हैं, जो आप वुडरो विल्सन लाइब्रेरी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में आपको डॉक्यूमेंट्स में मिल सकती है। उन्होंने सोचा कि पंजाब को हम पूर्ण रूप से कम्युनिस्ट बना सकते हैं। जी जी। क्योंकि वहाँ एक किसानों का आंदोलन थी और नौकरी ना होने की थी, उनका उसको लेकर, और हरकिशन सुरजीत यही उनको बोलता था कि कम्युनिज्म आ जाएगी पंजाब में, और वैसे भी लोकल बॉडीज इसमें जीत रहे थे। मुझे एक छोटा सा इसमें मैं अगर भूल नहीं जाऊँ, देखिए कम्युनिज्म जो है, कम्युनिस्ट बंगाल में भी है और पंजाब में भी थे, जो कि पंजाबी कुदरती तौर पर देशभक्त रहे और आज़ादी की लड़ाई में इनका आपस में तालमेल रहा। कलकत्ता से वो अंडमान या कामागटमारू, वो इनसे आपस में दोनों क्रांतिकारियों का संबंध रहा। पर एक ये, और जो ये क्या कारण हुआ कि जो बंगाल के कम्युनिस्ट है वो तो पक्के हिंदू है, वो तो दशहरा भी, दुर्गा पूजा सब कुछ, मगर ये क्या कारण है कि जो अपने धर्म से धर्म विहीन हो जाते हैं, धर्म छोड़ देते हैं, वो कम्युनिस्ट बनते हैं, इसलिए उनको कम्युनिस्ट भी पंजाब में कह देते हैं। ये क्या कारण है वहां का कम्युनिज्म और ये कम्युनिज्म में, दोनों में फर्क क्यों है? ये चलते चलते अगर आप वहाँ तो वो, क्योंकि वो श्री अरविंदो, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्णा, ये सब संतों के कारण ऐसी पकड़ हो गई कि उसके विरुद्ध में बोलकर करो और इसको सब छोड़ दो कहो तो कोई भी पूछने वाला। मगर यहाँ पंजाब में इन्होंने कहा कि आपको अगर पंजाब की फूड प्रॉब्लम हल करनी है, हरमंदिर साहब के सरोवर में चावल बीज दीजिए, और मतलब धर्म के विरोध में यहाँ पर क्यों है? ये इनका तो यहाँ का जो हरकिशन सुरजीत था और जो बाकी कम्युनिस्ट लीडर्स थे, वो तो बंगाल में तो एक बंगालीपन भी है जी। यहाँ ये जो बंगलापन जी, तो वो वहाँ इन चीजों में जुड़ते थे जी। लेकिन ये पंजाब में जी, ये सारे लोग जो मॉस्को में जाकर पढ़ के आए थे जी, इनको तो लगता था, वो तो ज्यादा उनसे भी ज्यादा, जैसे नए मुसलमान प्याज खाता है कहते थे, वैसे थे। और इनका गुस्सा भिंडरावाले पर यही था कि वो धर्म को वापस, धर्म की बात करते। सो आप ये कहते हैं कि भिंडरावाला धर्म की बात करते थे, धार्मिक व्यवस्था को ऊंचा, लोगों का आचरण ऊंचा उठाना चाहते थे, इसलिए भारत सरकार या श्रीमती इंदिरा गांधी या जो भी कम्युनिस्ट रशिया, इनका आपस में एक तालमेल था कि इनका गुस्सा कि पंजाब में इन्होंने कम्युनिज्म को नहीं पनपने दिया, इसलिए आप ये कहते हैं कि इसका रूट काज ये था और कोई नहीं था कि इनको लग रहा था पंजाब हमारे हाथ में आ रही है। जैसे आज क्रिश्चियंस जो हैं जी, वो भी समझते हैं कि पंजाब हमारे हाथ में आ सकती है जी जी जी, जी। और अच्छा, इसमें फिर ये क्या कारण आप बता रहे, कम्युनिस्ट हो गए, रशिया हो गया, भारत सरकार का वो फैक्टर हो गया,
पंजाब का हिंदू कैसे इनके साथ में मिल गया और टोटली इनके साथ में कोई भी बात हो उसने पहले अपनी मातृभाषा से इनकार किया। हाँ। पंजाबी जो बुनियाद जहां से ये हाँ, शुरू हुई हाँ, कि ये गवारों की बोली है। हाँ। बंगाली मुसलमान चाहे वो कोई भी है वो बंगला भाषा, जी, जी। तमिल का कोई भी है जी, वो अपनी लैंग्वेज जी, जी। यहाँ पर ये सारी विपदाएं सारी विपत्तियां ये मुसीबतें पंजाब में क्यों आई कि इन्होंने अपना धर्म भी छोड़ा, भाषा भी छोड़ी और विदेशी वो फिलॉसफी को भी एक्सेप्ट किया। जी, इसमें आपको थोड़ा फर्क करना पड़ेगा। जी जी। पंजाब केसरी का एडिटर वो तो कोई आई मीन व्यक्तिगत हिंदूवादी हो सकते थे जी। लेकिन उनको एक दिमाग में ये बात चढ़ गई थी कि किसी हालत में हिंदुओं को इकट्ठा करना चाहिए। जी। और मेरे पर तो सबसे ज्यादा वो कटाक्ष करते थे। जी जी जी। ज्यादातर जो हिंदी भाषा के लोग थे जी वो तो पंजाबी ही बोलते थे। हाँ जी, पंजाबी बोलते, बोल ही नहीं सकते। हाँ। बोल ही नहीं सकते अब और उनका हिंदी भी पंजाबी था। जी। जो हिंदी मैं बोलता हूँ उसमें इतने संस्कृत के शब्द हैं। हाँ जी। वो उनमें नहीं था। वो मुझे एक बड़ा अच्छा वो पंजाबी कह रहा था अब मैंने देश छोड़ देना, भारत में नहीं रहना है। हाँ। क्या हो गया? कहता जी आज वो अखबार में खबर छपी है। क्या कहता है? राम स्वरूप ने चोरी की, फलस्वरूप पकड़ा गया। कहता आप देश छोड़ देंगे। तो ये और दूसरा है कि हिंदुओं में भी आरएसएस के गुरु गोलवालकर थे या आरएसएस के जो प्रमुख वो इस राय के नहीं थे ना, नहीं थे। हाँ, बट ये आर्य समाज थे। आर्य समाज उसको कांग्रेस मैनिपुलेट कर रही थी। जी जी। देखिए क्या हुआ कि इंदिरा गांधी हार जाएगी चुनाव ये 1982 से लगने लगा। तो इंदिरा गांधी ने जम्मू की जो कश्मीर में जो इलेक्शन हुई 82 में उन्होंने जम्मू में चला दिया कि मुसलमान क्रिकेट मैच में जाकर पाकिस्तान की ताली बजाते हैं। तो वहाँ बड़ी मात्रा में जीत हो गई। जी जी। तो वो एक हिंदूवादी हवा पैदा करके चुनाव जीतने के दिमाग में थे। यानी कम्युनलिज्म को अपने पर्पस के लिए वही। इलेक्शन पॉलिटिक्स में इस्तेमाल। पंजाब में भी यही किया। पंजाब में निश्चित तौर पर यही किया। जी। शुरू में उन्होंने सोचा कि अकाली को कमजोर करने के लिए भिंडरावाला को खड़ा करो। और भिंडरावाला कहेंगे ये नपुंसक है, ये कुछ नहीं है ये। बट भिंडरावाला जैसे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी उसको समझ में आई कि मैं तो अपने पांव पर खड़े होकर प्रवचन कर सकता हूँ, तो ये कांग्रेस से मुझे क्या है। जी। तो कांग्रेस से दूरी शुरू हुई और उस दूरी के कारण इन्होंने सोचा ये तो अब इतना बड़ा हो गया। शुरू में तो हमने इसके लिए पब्लिसिटी की। ये अन्ना हजारे की भी यही प्रॉब्लम हुई इस बार। शुरू में इन्होंने बहुत मदद की कि रामदेव को कम किया जाए और फिर अन्ना हजारे अलग हो गए। आई मीन स्वाधीन अलग से अपने इंडिपेंडेंट विचार के हो गए। तो यहाँ भी ये जब भिंडरावाला अपने पांव पर खड़े होने लगा तो तब इनको खतरा लगा। पर स्वामी जी ये जो भिंडरावाले टकसाल है, इनके पहले संत करतार सिंह भिंडरावाले थे और जिनका धार्मिक बेसिकली तो ये धार्मिक एक टकसाल है, धर्म से तल्लक है। किसी व्यक्ति विशेष की तारीफ करनी पार्टी लेवल से ऊपर उठ के करते थे। पर कभी किसी पार्टी को सपोर्ट कभी नहीं किया। मगर वो ये एक चीज ये भी मानते थे कि जो अकाली दल है ये हमारा बुनियाद है, इसको खींचो तोड़ो मत। उनका ये बार बार था। इमरजेंसी के दौरान भी जब पंजाब सारे भारत में इमरजेंसी लगी, बीजेपी के जनसंघ के सभी हरमंदिर साहब में गए, सब कुछ हुआ, मगर संत करतार सिंह भिंडरावाले ने 75 जुलूस निकाले वहां से अनंतपुर साहब से लेकर के और आखिर तक। तो ये तो कभी कांग्रेस किसी इंडिविजुअल की सपोर्ट करनी अलग, मगर ये जो प्रचार एक किया कि कांग्रेस के एजेंट हैं, ये कैसे नहीं, ये तो अब उनके आखिर में संत भिंडरावाले की उम्र तो बहुत कम थी। जी बिल्कुल, होती कम है। सियासी में उनका उतना तजुर्बा भी नहीं, धार्मिक थे। हाँ, तो उनको जैसे समझ में आई वो इंडिपेंडेंट हो गए। ये सोच रहे थे इनको
उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि दमदमी टकसाल एक शुरू से एक इंडिपेंडेंट टैक्स बिल्कुल शुरू से रही। हाँ जी। तो मैं समझता हूँ कि ये इनको भय हो गया जब ये इतनी बड़ी शक्ति के रूप में आई। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। एक दिन 5 निहंग, मैं भिंडरवाला के साथ था उस समय, और उन्होंने मुझे कहा कि तुम आते हो सुबह, शाम को चले जाते हो, तुम 4-5 दिन रहो मेरे साथ। अच्छा। तो मैं फिर 5 दिन रहा। तो दूसरा दिन एक खबर आई कि फिरोजपुर में 5 निहंग को सीआरपी ने गोली से मारा। जी। तो उन्होंने मुझे, मैं सुबह मिलता था उनको नाश्ता के बाद, तो मैंने जब बातचीत, उन्होंने कहा ये खबर जानते हो? मैंने कहा हाँ, मैंने अखबार में देखा। तो इनका इसका असलियत पता करना चाहिए। जी। तो मैंने कहा ठीक है, आप जाओगे वहाँ? मैंने कहा जाऊँगा, तो मुझे कोई पहचान नहीं है वहाँ, तो मैं वो सब मैं देख लूँगा। तो उन्होंने फ़ोन उठाया, किसी को फ़ोन किया, तो सारी इंतज़ाम हो गई थी, और पुलिस भी उनको मानते थे, तो हमारे पूरा व्यवस्था हो गया था, बंदोबस्त हो गई थी। तो मैं वहाँ गया, मैंने देखा, और वहाँ की सीआरपी कमांडेंट से भी पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये निहंग ऊपर बैठे थे बस में, बस आकर रुक गई थी। तो ये सीआरपी वालों ने कहा कि उतरो। तो 4 तो उतर गए थे। एक उतरते समय उसको गुस्सा आया, तो उसने सिर्फ वो जो हाँ, उसको उठा के ऐसा दिखाया बस, उसमें इन्होंने 5 को मार दिया। क्योंकि पुलिस वाले भी, सीआरपी भी उस समय घबराती थी कि कौन हमें, किसी को पता नहीं था वास्तव में कि कई ऐसे जो बंदूक चलाने वाले लोग थे वो ड्रग डीलर्स थे, ये थे दुनिया भर। बट एनीवे ये हो गया। तो मैं जब वापस लौटा तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो मैंने ये बताया। तो उन्होंने कहा मुझसे कि तो ये तो बहुत बुरा है, इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने कहा मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं पार्लियामेंट में उठाऊंगा। नहीं, पार्लियामेंट में क्या, वो लोग कभी करने वाले नहीं। तो फिर मैंने कहा कि फिर क्या हो सकता है? उन्होंने कहा कि ऐसे लोग कहते हैं कि ये 5 मारेंगे तो हम 50 मारे। तो मुझे तो ऐसे भी किसी डर नहीं है ना। मैंने कहा संत जी, मैं तो एक हिंदू आपके सामने बैठा हूँ, मुझे पहले मार दो। तो हंसने लगे, अरे कैसी बात करते हो आप? कई बातें ऐसी जो चलते हैं, मैंने आपको बताया। मैंने नहीं कहा कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि आप मासूम हिंदू को मारने के पक्ष में नहीं है? इसने बिल्कुल नहीं, ये तो हिंदू, हम वहीं से आए। तो ये बात यानी प्रचार में नहीं आती थी। अच्छा, परंतु उल्टा करते थे। जैसे मैं एक बार गया अकाल तख्त में, जब मैं ठहरा था, तो जब बाहर निकला तो अखबार वाले सब घेर लिया मुझे। अब इंदिरा के साथ 5 दिन रहे, कैसा था? मैंने कहा बड़ा अच्छा था, बड़े आनंद रहे, उनके प्रवचन सुने। तो उन्होंने कहा वो तो टेररिस्ट है। मैंने कहा टेररिस्ट रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा? मैं यानी जब मैं था उन 5 दिन के शाम को प्रेस आते थे, अकाल तख्त में वीडियो वाले से सवाल पूछते थे। मैं कहा कोई प्रेस ऐसा कर सकता है, टेररिस्ट ऐसा कर सकता है? वो कहा कि आपने हथियार देखे वहाँ? मैंने देखो, मैं गया वीडियो वाला के गेस्ट के, वहाँ हथियार देखने के लिए नहीं गया, तो हथियार देखने के सवाल ही नहीं है। दूसरे दिन सब अखबारों ने यही छापा, स्वामी कहता हथियार नहीं है। और हाँ, क्योंकि वो खुद पहनते थे, तो लोग उन्होंने सोचा भंडार होगा, तो हमें बदनाम करने के लिए ऐसा। तो उनका, संत जी को बदनाम करने के लिए बहुत प्रयास हुआ इंदिरा गांधी के। अच्छा स्वामी जी, आप तो इतने करीब रहे, मैं 2 चीजें मुझे ज़हन में आती हैं। किसी से अगर विचारों का तालमेल ना हो तो 5 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ सकते। आप 5 दिन कैसे उनके साथ रह गए? इसका मतलब विचारों की सहमति थी। देखिए, उनके पास जो मेरी साथ बात होती थी, उन्होंने कभी मुझसे खालिस्तान की बात नहीं की। और मैंने कहा एक ही दिन नहीं, खालिस्तान तो उस समय खैर मुद्दा नहीं था। ये एंटी हिंदू, किसी दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ, निर्दोषों को मारने के खिलाफ,
आचरणहीनता की कोई बात आपने, कोई मुंह से अपशब्द या गाली को भी, मेरा ख्याल है नहीं, वो तो जैसे गुस्से में ना वो तो हंसते थे जी। वो तो वास्तव में उनका जो और समय रहते तो पूरा संत बन जाते जी जी। उनका तो ऐसा, उन्होंने उनका प्रवचन मैंने सुना, ड्रग के खिलाफ बोले जी, महिलाओं का छेड़छाड़ के खिलाफ जी जी। उन्होंने खुद 2-3 लोगों को, एक बार मुझे याद है मैं बैठा था जी, तो एक परिवार आई जी, और उनके साथ एक लड़की भी थी। तो इन्होंने संत जी ने कहा कि ये मेरी बेटी है, इससे तुम दहेज मांगते हो। वो हिंदू लड़की थी। हाँ जी 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 जी। वो क्या बात क्या हुई थी, उसका काफी प्रचार हुआ, क्या बात? नहीं, इतनी बात हुई कि वो उसको तंग कर रहे थे दहेज पर, उसके हिंदू लड़की के ससुराल वाले। जी जी। तो ये परिवार जो आई वो ससुराल थी। जी जी जी। तो संत जी ने कहा मेरे सामने, ये तो मेरी बेटी है, इससे आप दहेज चाहते हो? ना ऐसे बोले, नहीं कोई बात नहीं, मुझे पॉकेट में लगाया और पैसा रख के क्या लो दे जाओ। उन्होंने बोला ऐसा ससुराल नहीं चाहिए ऐसा ससुर नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा दहेज नहीं चाहिए तो ठीक है, आगे से कभी इसको तंग मत करना, ये मेरी बेटी है। और ये आप समझते हैं कि ये उनकी दिली भावना थी, मतलब बनावट नहीं थी इसमें? बिल्कुल नहीं बनावट थी, मैं क्यों, वो तो अचानक मैं था वहाँ। जी जी। और नहीं, उनके कैरेक्टर में, उनके आचरण में, क्योंकि वो प्रचार में भी कहते थे जी, महिलाओं को कभी नहीं छेड़छाड़ करना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, ड्रग्स नहीं लेना चाहिए। शराब पर तो खुशवंत सिंह जी ने लिखा एक जगह, हाँ। कहते कि एक बार मैं बैठा था, हाँ। तो उनकी कृपान मुझे थोड़ी सी चुभ रही थी। हाँ। तो वो कहने लगे कि अगर कोई मुझे शराब पीता पकड़ा जाएगा मैं उसको जिंदा जला दूंगा। तो खुशवंत सिंह कहने लगा कि मैंने कहा कि ये अकालियों का मामला इंदिरा गांधी के हवाले, इंदिरा गांधी को चाहिए इनके हवाले कर दे, आधे अकाली ये खत्म कर देगा। तो वो तो उनका जीवन था, अगर आप हिंदू हो तो हिंदू रहो, है ना? अगर मुझे उन्होंने कहा कि शिव भगवान इतना लंबा बाल रखते हैं, तुम क्यों नहीं रखते? जी जी। तो अच्छा, एक बार बार एक बात इतने जोर से, कहीं पर हिंदुस्तान में, देश में कहीं भी कोई दुर्घटना और ऐसा कुकृत्य हो जाए, वो भिंडरावाले ने किया। हरमंदिर साहब जो है वो उसका अड्डा है, वो ये है। तो क्या ये आप नहीं समझते कि पुलिस का ये फर्ज है कि अगर किसी ने को कत्ल किया, क्राइम किया, उसको आइडेंटिफाई करे, उसको प्रोसिक्यूट करे। वो तीसरे दिन किसी को पकड़ के मार दिया और कह दिया जी ये उसमें शामिल था। नहीं, वो तो साजिश था ना। ये तो इसमें मैं बता रहा हूँ कि जब मेरे साथ ये हो सकता है कि मैंने कहा कि हथियार नहीं है, जब मैंने कभी नहीं कहा, और जब मैं खंडन देता हूँ उसको छापते नहीं है जी, इसके माने इनका मंशा बन गया था इसको बदनाम करने के लिए जी। और मैं आपको कहता हूँ वास्तव में भिंडरावाला और 15-20 साल जिंदा रहते तो वो बिल्कुल एक संत बन जाते और पंजाब को बिल्कुल शुद्ध कर देते। और जिन लोग वो नहीं चाहते थे, जैसे कम्युनिस्ट लोग थे, सोवियत यूनियन नहीं चाहती थी क्योंकि वो कम्युनिज्म के खिलाफ बोलते थे। कम्युनिज्म के खिलाफ 2-3 बार मेरे सामने बोले उन्होंने। और इंदिरा गांधी सोचती थी कि पंजाब मेरे हाथ से निकल जाएगी। पर ये स्वामी जी, टोटल पोलराइजेशन कैसे होगी पंजाब में? हिंदू सिख डिवाइड कंप्लीट कैसे हो गया? और जो आज तक इस इशू पर, भिंडरावाला इशू पर आज तक भी है, उनके लिए एक ही नजरों में भिंडरावाला, जैसे बीजेपी वाले आज भी अगर उनका नाम भी अगर आ गया उनकी याद में, तो उस पर भी इतना आक्षेप और इतना हो हल्ला है। वो देखिए, उसको ठीक करना है। क्या है, मैं पहले कहता हूँ जी, हिंदू है तो वो गुरु तेग बहादुर की वो जो ऋणी है, वो कभी भूल नहीं सकता। जी जी। गुरु गोविंद सिंह का नहीं बोल सकता। जी जी जी। पार्टीशन में जो सरदारों ने किया उसको कोई नहीं भूल सकता। सेनाओं में सबसे आगे वो 65 में, 71 में, हर समय कभी भी। पर फिर इनको देशद्रोही करके क्यों? ये तो मेरी राय में तो अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी, जिसमें कई लोग फंस गए। हो सकता है कि बीजेपी ने सोचा होगा कि हिंदुओं को इकट्ठा करके हम हिंदुओं का बन जाएंगे
अब गैर समझ थी, मैं नहीं जानता, परंतु मैंने उस समय स्टैंड लिया और आज मैं ये कहता हूँ कि ये स्टैंड ही करेक्ट है। जी स्वामी जी, ये जो जैसे चंद्रशेखर जी का हाँ। ये बहुत ओपनली था जी, जी। कि इंदिरा गांधी एक चुनाव जीतना चाहती थी, हाँ। उसलिए उन्होंने हिंदुओं की भावनाओं को भड़काया और फिर ये ब्लू स्टार ऑपरेशन किया। जी। आप इसमें कहाँ तक, आपके क्या विचार हैं? नहीं, हिंदुस्तान ऑपरेशन ब्लू स्टार तो चुनाव में जीतने का फायदा होगा, वो उसमें एक कारण हो सकता है, पर मुख्य कारण था कि ये सोवियत रूस का आइडिया था कि ये है जो हमारी की हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी, जी जी। इसको तोड़ना है। अच्छा हाँ, ये कभी हमारे हो नहीं सकते। अच्छा। ये सब अपने मेहनत से खड़े होने वाले लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, हाँ, बेसिकली धार्मिक लोग हैं, अपने मेहनत से करने वाले हैं, और एक भी भिखारी आपको सरदार नहीं मिलेगा। हाँ जी। तो ये एक आप सरदारों ने तो, सिखों ने तो अंग्रेज को हरा दी और अंग्रेज को समझौता करना पड़ा, अफगानिस्तान में और सोमनाथ का दरवाजा लेकर आए। जी, वो तो दरवाजा मैं कहता हूँ कि हम तो हिंदू लोग सदा के लिए, जी सदा के लिए, ये नहीं कि एक बार एहसान मान लिया, सदा के लिए हम ऋणी हैं। जी जी जी। और ये जो हुआ ये पागलपन मैं समझता हूँ जो हिंदुओं ने किया। मुझसे मैं पूछता था, जब भिंडरेवाला कहते हैं कि दुकानों का जो शराब की है आसपास उसको हटाने में इसमें आपका क्या जाता है, उस पर गुस्सा होते थे मुझ पर। जी जी। परंतु आरएसएस में जी ये फीलिंग नहीं था। जी जी। पता नहीं बीजेपी में उस समय जनसंघ थे, जी ये क्यों फील आया, नहीं बीजेपी आ गई थी, जी। बीजेपी का था, पता नहीं क्या था, अब हो गया है। मैं तो आगे के लिए देखता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ एक घटना जी जो किसी को नहीं पता है। जी जी। मुझे ज्ञानी जी ने बुलाया था, ज्ञानी जैन से, हाँ जी। ज्ञानी जी राष्ट्रपति थे, उन्होंने जी। बुलाया था जी। अप्रैल में, जी। नहीं हाँ अप्रैल में जी। मैं होकर आया था, तो उसके जी। तुरंत बाद बुलाया, उसने कहा नहीं इसे सॉरी मई 15 को बुलाया था जी। और कहा था कि तुम इंदिरा जी से मिलो। जी। मैं कहा कि क्या बात हो गई, तो उन्होंने कहा कि उसको समझाओ कि ये आर्मी भेज के कुछ नहीं होने वाला है, और आप समझा सकते हो, वो आपको इमरजेंसी में आप उसके विरुद्ध में लड़े। इसका मतलब उन्हें पहले से पता था? जरूर पता था, वो तो प्लानिंग थी, ये ब्लू स्टार प्लान था, ब्लू स्टार प्लान था। कितना पहले से प्लान था ये तो मुझे लगता है फरवरी में प्लान हो गया था, फरवरी में, क्योंकि जो कहते हैं चक्राता में एक पहले इन्होंने मॉडल भी बनाया, हो सकता है, वो मैंने जानता नहीं, बट तो ये प्लानिंग हुई थी। और एक और स्वामी जी, उस समय के जो आर्मी का सर्कुलर था, बातचीत में निकला, उस बातचीत सर्कुलर में ये लिखा था कि पंजाब में टेररिस्ट ने टेक ओवर कर लिया है, जो कि औरतों की इज्जत और ये सब के भी इल्जाम है, और उनकी पहचान दी थी जो टेररिस्ट हैं, वो पीला पटका पहनते हैं, अमृतधारी हैं, वे ऑल आर अमृतधारी। ये भी क्या पागलपन है, या एक बहुत सोची समझी साजिश के तहत नहीं? ये तो देखिए हुक्म आर्मी को दिया होगा, ये तो सोवियत रूस का इन सब का था। मैं आपको बता रहा हूँ ये जो मैं फिर जाकर इंदिरा जी से मैंने उनको कहा, अच्छा अच्छा, कि मैं तो सुन रहा हूँ कि आप भेजने वाले हैं। ओके, अच्छा। और मैंने उनको एक घटना सुनाई थी। मैंने भिंडरेवाला ने एक दिन मुझसे कहा कि ये बीवी जी से मेरी बात करा दो। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा वो तो आपसे बात नहीं करेगी। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा आप पिस्तौल लगाए हुए हैं, वो आपका कारतूस लगी हुई है, वो देख के डर जाती है। मैंने थोड़ा मजाक में ये कहा। उन्होंने कहा ये कैसा? वो तो यासिर अराफात है, तो उसके पास पिस्तौल था, उसने तो गला लगा दिया उसे। जाके बोलो। बट मैं पहुंच नहीं सका उनके पास, और इंदिरा जी का। बट इसके बाद मैंने उनको बताया जी कि वो तो बातचीत के लिए तैयार है, वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, इसको टेररिस्ट कहना मूर्ख है। मुझे लगता है ये बूटा सिंह भी थोड़ा भड़का रहे थे जी जी, तो इंदिरा गांधी को भड़का रहे थे या तो सोचा होगा इंदिरा गांधी ऐसे सोच रहे तो हाँ मैं हाँ मिला। सोनिया गांधी भी कह रही थी इंदिरा गांधी को सरदार सब दुनिया भर में है,
और यदि ये इसके बारे में कुछ नहीं करोगे, वो तो सोवियत रूस की थी, सबको पता है। उनके पिताजी तो केजीबी के लिए काम किया, इसने केजीबी से पैसा लिया था। तो वो कह रही थी मैं बच्चों को लेकर चली जाऊंगी। जी जी जी। तो ये सारे लोग लगे हुए थे। तो मैंने इंदिरा जी से कहा कि ये मत करिए, क्योंकि ये सिखों का आप मंशा जान लीजिए। कोई होगा उनके साथ अन्याय तो वो सब छोड़ देंगे, पर आपको नहीं छोड़ेंगे। ओके। मैंने कहा वो उद्धम सिंह का मैंने दिया वो। अच्छा। हाँ आपने बोला? हाँ बोला। मैंने कहा वो नहीं छोड़ेगा, और उनका कैरेक्टर ये है। तो ये मत करिए, ये आर्मी कुछ नहीं होगा, सारा एक स्कार बन जाएगा, जीवन भर हम लोगों को इसमें सर झुकाना पड़ा। तब उसने मुझसे कहा कि तुम राजीव से बात करो। मैंने कहा राजीव से मैं क्यों बात करूं? वो तो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, आप प्राइम मिनिस्टर हैं। अब उसमें रुक गया था। बट अगस्त 1984 जी लास्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट था, वो मुझे कॉरिडोर में मिल गई इंदिरा जी पार्लियामेंट के। जी। तो उसने मेरे बाजू को पकड़ के कहा तुम्हारी बात सही निकली, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। अच्छा अच्छा, उनको एहसास हो गया था। उसको नहीं बता दे कैसा होगा, बट उसने ये कहा मुझे नहीं छोड़ेंगे मुझे। जी। और धवन खड़ा हुआ था उस समय। तो पहले उसने मुझसे, इंदिरा जी ने कहा कि आप दिल्ली में होते नहीं हैं। मैंने कहा कि नहीं, वो फिर धवन ने कहा नहीं, कभी वो इजराइल चले जाते हैं, कभी अमेरिका चले जाते हैं। मुझे लगता है कई लोगों का ये आइडिया था कि मुझे इंदिरा से मिलने नहीं देना है। जी। वैसे आप जब उनके हाव भाव देखे, हाँ, आपको एक साइकोलॉजिकली कैसी उनकी फीलिंग लगी? फियरफुल थी या चिंतित थी या कैसा लगा? उलझन में थी, यानी कंफ्यूज थी। और आखिर में अगस्त में उसको लगा कि एहसास हो गया था कि गलती हुई है, बहुत बड़ा गलती। क्यों? मिलिट्री ने कहा कि कोई नुकसान नहीं होगा। ये सुंदर जी ने कहा ये तो सब लड़के हैं, ये क्या मैं 5 मिनट में ठीक कर दूंगा। जी जी। हाँ, उल्टा उनको जाकर अकाल तक कोई तोड़ना पड़ा। आप जिस समय ये ब्लू स्टार हुआ, आप कहाँ थे उस समय? मैं उस समय बेंगलोर में था। अच्छा। और भिंडेवाला जी का फोन आया था मेरे पास संस्थी का। अच्छा। जून 2 को जी, कि तुसी कब आओगे इधर, बातचीत करनी है। तो मैं उनको ये कहता था, देखिए संत जी, स्टेट जो होती है सरकार, ये एक बार दिमाग बना लेगी हिंसा करने के लिए, जी, फिर कोई हद नहीं होता इसमें। जी, जी। उसमें कभी मत जाइए। गांधी जी ऐसा करते थे, वो उतना दूर नहीं जाते थे ना, वो समझौता करते, समझौता बातचीत में शुरू करते, बात करके, तो आप करते रहिए जी। हाँ, मगर वो नहीं कर सकते। वो उस समय नहीं कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं करेंगे, उनको पूरा यकीन था। उनके संत भिंडरावाले के मन में कभी आपको आर्मी, फौज, देश की ताकत, कभी डर भी उनके अंदर महसूस? नहीं, डर नहीं, बिल्कुल नहीं था। बट वो ऐसा गोल्डन टेम्पल के अंदर हिंदुस्तान की ही सेना आएगी, कभी नहीं सोचा। उन्होंने नहीं सोचा था। मैं कहता था ये होगा, आपको था कि जाएगी, या बिकॉज ये मुझे सोवियत रूस का जो देख कर, और आपका नजरिया उस है। हाँ, उससे है, क्योंकि ये सोवियत रूस का तो मरना जिंदा का सवाल था कि ये जम जाएगा तो फिर कभी भविष्य में। तो स्वामी जी, जो ब्लू स्टार के ऊपर जो इन्होंने व्हाइट पेपर सरकार ने निकाला, वो कितना झूठ है, कितना उसमें कुछ रत्ती भर मैंने उसको पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे बारे झूठ बोलेंगे तो उसमें क्या क्या लिखेंगे। तो मैं तो आपको ये वादा करता हूँ कि जब चंद्रशेखर बने तो उन्होंने कहा कि भाई देखो अभी मत खोलो, हम अभी आए हैं और राजीव गांधी की मदद से आए हैं, तो उसकी माँ की आएगी तो और हमारी सरकार गिर गई तो हम नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि आज भी कोई एक स्थिर सरकार आएगी, उसमें हम होंगे तो इसको एक जैसे न्यूरनबर्ग का बनाई वैसे बनाएंगे। हाँ, रिस्पॉन्सिबल फिक्स होना है। वो लोग मर गए भी तब भी उनको उनका ऐलान। स्वामी जी, ये जो ब्लू स्टार हुआ, तो बाकी चीजें आप रशिया ने किया, जो कुछ किया, वो एक जब आप कह रहे हैं जब एक क्रॉस कर जाती है फिर सीमा नहीं होती, जैसे वो इजराइल वाले भी कहते हैं कि जो लिमिट है वो औरत के लिए है, फौज के लिए नहीं है, तो फौज के लिए कोई लिमिट नहीं है। तो उसमें आप ये बताएं कि
ये जिस तरीके से ऑपरेशन किया गया, जी जी बहुत छोटे छोटे मैं 2-4 पॉइंट्स आपसे जानना चाहता हूँ। जैसे कभी लड़ाई होती है तो वार तभी होता है जब उसको वार डिक्लेयर किया जाता है, अदरवाइज इट इज कॉन्फ्लिक्ट। वहां पर दरबार साहब के बाहर इन्होंने बारबर्ड वायर लगा करके इंक्लोजर बनाई और जो उसके ऊपर बोर्ड लगा था POWs, ये इस तरीके के। और फिर जो पंजाब की फौजी बैकग्राउंड है, आप ये महसूस करते हैं कि उनसे कहा जाए फौजी बैकग्राउंड वालों से कि आपकी बीवियां, बच्चे, औरतें, बेटियां वो एक दुश्मन आर्मी के सामने सरेंडर कर दे, इसका मतलब उन्होंने उनको दुश्मन डिक्लेयर करके फिर ऑपरेशन किया? नहीं, वो तो देखिए सुंदर जी ने कई चीजों में मिसलीड किया। अच्छा स्वामी जी, जब आर्मी ने ऑपरेशन किया जी तो आर्मी वाज सेंट फॉर द असिस्टेंस ऑफ द सिविल अथॉरिटीज? नहीं, उस समय उन्होंने जो आर्म फोर्स स्पेशल सर्विसेज एक्ट के जैसे एक एक्ट थी पहले जी, उसका डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स जी, उसमें आर्मी को डिप्लॉय किया जा सकता है। अच्छा, उसमें उन्होंने उस एक्ट के अंडर में। पर वो जो एक्ट है, आपने इमरजेंसी के खिलाफ इतनी लड़ाई लड़ी और बहुत कामयाबी से लड़ी अकालियों के साथ में मिलकर के, तो ये कैसे हुआ कि जो बाद में 59th अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन की आई, जिसमें केवल पंजाब के केस में इमरजेंसी लगाई गई जो तकरीबन 11 साल रही, और इस पे कोई भी नहीं बोला, बस इमरजेंसी पावर्स दे दी गई सिर्फ पंजाब के केस में? अनप्रेसिडेंटेड है। नहीं, अनप्रेसिडेंटेड तो है ही, बट मैं आखिर में ये बात तो हम चर्चा में नहीं आई जी, परंतु ये एक इंटरनेशनल डिसीजन था सोवियत रूस और ये जो पंजाब में इमरजेंसी लगाना, पंजाब को ह्यूमिलिएट करने का जी, ये मंशा थी सोवियत यूनियन का। जी जी जी, मैं ये सोचता हूँ कि सोवियत यूनियन उस समय अफगानिस्तान तक पहुँच गया जी जी, और हो सकता है उन्होंने सोचा होगा कि पाकिस्तान भी आसानी से हमारे हाथ में आ जाएगी, या पाकिस्तान को ठीक करने के लिए हिंदुस्तान में हमारी और पकड़। ये जो सुंदर जी ने ये कहा कि when we entered Golden Temple we went there with humility, folded hands, हो सकता है उसमें वो तो बनावटी है ना जी, जब आपने आपको ऑब्जेक्टिव दे दिया, आपको लक्ष्य दे दिया कि जाकर उस गोल्डन टेम्पल को टेक ओवर करो जी, आर्मी को शूट टू किल। हाँ वो तो हाँ बिल्कुल, उसमें तो दो राय नहीं थी। ये तो टैंक लाते, वो टैंक ला गए अंदर जी जी, टैंक, और परिसर में उन्होंने टैंक चलाई। अच्छा स्वामी जी, एक चीज वो उनका ये कहना था, मुझे थोड़ा सा मैं आपसे जान क्योंकि आप बहुत एनालिस्ट भी हैं। देखिए, जो अकाल तख्त है, सर्वोच्च स्थान है, उसका जो तख्त है वो परिक्रमा के अंदर है जी, पर जो तख्त की बिल्डिंग है वो परिक्रमा से बाहर है, पीछे है, गली में है जी, तो अगर इनका ये कहना था कि वहां पर सभी उग्रवादी आतंकवादी हैं तो पीछे से जी जी, तो वो साइड से, पीछे से, साइड से वो इजीली एंटर कर सकते थे, पर इन्होंने जो रूट अडॉप्ट किया नॉर्मल पिलग्रिम का, घंटा घर से होके बाई तरफ घूम के लाइब्रेरी की तरफ से जा करके, ये क्या इसको कहा जाए कि पूरी चीज को तबाह करने के मंशा से गए थे? वो गए थे कि मंशा या हौसला सिखों का टूट जाए, ये सोवियत रूस का मतलब पूरी कौम को हाँ ये लड़ाकू अब से इसको लड़ाकू ये खड़े ना हो जी, हिंदुस्तान के लिए खड़ा ना हो, रूस का ये था। तो इसका नुकसान हिंदुस्तान को नहीं हुआ है, तो इसी को ठीक करना है। पर ये जो मंशा जो जैसे आप, अच्छा इसमें रेफरेंस लाइब्रेरी को क्यों जलाया है? यही वो मैं आपको बता रहा हूँ जो मुझे बताया गया, जिसमें मुझे यकीन होता है जी, कि ये जब अंदर आए ये सोच रहे थे कि सब डर जाएंगे, सब छोड़ देंगे, ये 5 मिनट का काम है। जब देखा कि लोग लड़ रहे हैं और जमे हुए हैं, तब इनको घबराहट आई, तब उन्होंने कहा कि अब तो पीछे नहीं हट सकते, तो लगाओ पूरा फोर्स। और उसमें मैं नहीं सोचा हूँ कि ये उनको पता था, और उन्होंने तो गोली ऐसी चलाई, टैंक की गोली की बंदूक से निकली बड़े तो ये सिर्फ उसको करना ऐसा नहीं था, पर अकाल तख्त को तोड़ देना
यही ऐसे डिसीजन है जो मैं समझता हूँ कि सबसे बुरा डिसीजन था। मैंने ये कहा था कि मैंने इंदिरा जी को भी ये कहा था उस समय कि आप इसको पानी मिल रही है, बिजली मिल रही है, सब कुछ मिल रही है, आप सराउंड करके इसको बंद कर दीजिए। जी जी। अब ये क्यों नहीं किया? ये अंदर जाने का क्या जरूरत थी? जी 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 बिल्कुल। तो इसका मतलब अगर भिंडरा वाले पर एक चीज और स्वामी जी, जैसे आम प्रचार बाद में किया कि भिंडरा वाले दरबार साहब में थे इसलिए हमला हुआ, पर हमला तो 42 गुरुद्वारों पे किया गया। नहीं वो तो है ही नहीं, बाकी सभी गुरुद्वारों पे किया, क्योंकि वो सब में भिंडरे वाले के चेले होंगे ऐसा सोचा होगा। मैं नहीं जानता हूँ ये डिसीजन कैसे लिए गए, पर मैं सोचता हूँ कि कहीं और सोचा होगा। उन्होंने टोटल कर्फ्यू कर दिया, कोई गाड़ी भी नहीं चल सकती। हाँ, ये तो टोटल जैसे वॉर डिक्लेयर किया, ऐसा हो गया। तो ये है। बट मैं तो कहता हूँ हम तो हिंदू लोग सरदारों को अलग नहीं मानते। सरदारों के साथ इसमें एक है वो जो लाइब्रेरी की पुस्तकें वो ले गए, बहुत ऐतिहासिक और बड़े रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। वो कभी कहते हैं हमने दे दिए, कभी कहते हैं है नहीं, कभी कहते हैं जला दिए। ये कांग्रेस सरकार होते तक आपको कभी नहीं पता लगेगा। और आप इतनी बार सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, इस पे कभी चले जाइए। मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ, बट बात यह है कि उसमें आपके कई सरदार वकील हैं, वो ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं भाई इसमें भी मैं घुस गया हूँ। आप सरदारों में सरदार बन जाइए। तो मैं तो इमरजेंसी में सरदार ही तो मैं कह रहा हूँ तो आप उनकी अगुवाई करिए। सरदार मुझे पूछेंगे तो मैं कर दूंगा। मैं पूछ रहा हूँ, मैं सरदार हूँ। हाँ वो ठीक है। अब माने वो जो लोग मुझे डॉक्यूमेंट्स निकाल के दे सकते हैं जो उस समय का हुआ, उसके जो रिसर्च बनी हुई है। जैसे 84 का हुआ, 84 का तो अभी बाकी बहुत है, हम कोई भूलने वाले नहीं है। देखिए जो हिंदू एहसान मानता है कि जो सरकार लोगों को लगेगा आप कह रहे हैं बोलने वाला भूलने वाले नहीं है। हाँ, तो मैं आपकी नहीं, हम सिर्फ बोलने वाले नहीं बिल्कुल हम करने वाले हैं। भूलने की बात वो भी जो हुआ है 1984 में भी मेरा ख्याल है दुनिया के इतिहास में ऐसा कहीं ये तो सरकारी जेनोसाइड है। जी जेनोसाइड, टोटली नो क्वेश्चन। मैं वहाँ दिल्ली में था जी। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि पता नहीं कौन सी मंशा काम करती है। जब राजीव गांधी की हत्या हुई मैं मंत्री था, तब यही कांग्रेस ने मॉब निकाल करके सीमापुरी ऐसे जो मद्रासियों की जो है वहां करने वाले थे जी। लेकिन हमने 4 बजे सुबह आर्मी को भेजा वहां, 2 बटालियन जी, और सब रुक गया जी। यदि 84 में भी ऐसा ही होता तो कुछ नहीं होता जी। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये जो सारे एचकेएल भगत ये सब रूसीवादी थे, आपको मैं बता रहा हूँ। कहीं ना कहीं इसका प्लानिंग थी। ये इनको कभी दिल बी ब्रॉट टू बुक, कभी सजा मिलेगी? जो जगदीश टाइटलर है या जो कोई रोक नहीं सकता, रिकॉर्ड्स बहुत पक्के हैं। सरकार अपने ऊपर करने के लिए ये तो नहीं करेगी, और सोनिया गांधी खास तौर पर नहीं करेगी क्योंकि उसका भी हिस्सा है इसमें जो अभी बाहर नहीं आया। यही है कि हम लोग कभी ये नहीं मान सकते कि हिंदुस्तान का टुकड़ा होगा और सरदार जी चले जाएंगे तो फिर हमारा तो हम तो इतना कमजोर हो जाएंगे कि हम कोई के नहीं होंगे। तो इसीलिए सरदार को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो आप अलग भी होने जाएंगे तो पकड़ के रखूंगा। तो वो जो कहते हैं कि राजीव गांधी का ये स्टेटमेंट बहुत मशहूर हुआ कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती। मैं इस पे कुछ दूसरा पूछना चाहता था कि आज तक दुनिया में कभी नहीं हुआ कि पेड़ गिरे धरती हिलने लगे। धरती के हिलने से तो पेड़ गिरते हैं पर आपने कभी देखा है कि पेड़ गिर गया वो धरती हिल गई? देखिए उस समय उसको हिंदी बहुत कम पता था। एक दिन उसने कह दिया कि मैं उनको नानी याद दिला दूंगा। अमेरिकन माँ का दूध पिए तो सामने आ जाओ। जी जी। तो मैं उनको अच्छी तरह जानता था राजीव गांधी को जी। और वो बहुत दुखी थे, इसीलिए उन्होंने लॉन्गेवाल पैक्ट में भी करते समय उन्होंने कहा भी था कि भारत माता जीत गई, हम हार गए, कोई हर्जा नहीं। वो समय उनका मंशा था करने के लिए, मैं नहीं जानता। मुझे नहीं लगता है कि उनको जानते हुए
कि वो कभी कहेगा कि जाकर इतने मारो, लोगों को मारो। मैं ज़्यादा समझता हूँ कि ये जो राजनीति में बड़े सालों से रहे हुए सोवियत रूस के पक्ष में थे, उनका दिमाग कोई चला होगा। बट इसकी जो है कोई सच्चा हिंदू कभी भूल नहीं सकता। अच्छा, अब जो ब्लू स्टार के नेचुरली कुदरती तौर पे जैसे आप बता रहे हैं, सर जरनैल सिंह जी भिंडरांवाले, वो एक धार्मिक व्यक्ति थे, धार्मिक मंशा पूरे करते हुए हरमंदिर साहब की राखी के लिए, रक्षा के लिए वो लड़े। तो उससे पहले उस कम्प्लेक्स में बाबा दीप सिंह, बाबा गुरबख्श सिंह, उनकी यादगार बनी, जिनका भी वही इतिहास है बिल्कुल। तो इनकी अगर यादगार बनती है तो उसमें क्या कोई इतिहास लगता है? मैं तो कभी इतराज नहीं कर सकता, भिंडरांवाला को मैं इतना अच्छी तरह जानता था। तो जो भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि ये नहीं बनना चाहिए, वो उनका, उनसे मैं पूछूंगा। मैं तो भारतीय जनता पार्टी में अभी तो नहीं हूँ, पहले भी नहीं था। मैं पुराना जनसंघी हूँ, भारतीय जनता पार्टी में रह गया जी। और जनता पार्टी की नीति बहुत स्पष्ट है कि सिखों को, हिंदुओं को ये सारा जो साजिश हुई है उसको खत्म करके कैसे साथ लाए। अब सिख कुल मिला इकट्ठे होकर ये तय करते हैं कि भिंडरांवाला का स्मरण होगा या उसका स्मारिका होगा। मैं नहीं उसको जाऊंगा। और मैं जो जानता था भिंडरांवाले के बारे, आपकी मैं तो कोई खास ऐसी बात जो आपको याद आती हो, जो भिंडरांवाले से, उनसे जो संथी से बात हुई, उसमें आपको कुछ उनकी यादें जो हमारे दर्शकों के साथ? नहीं, वो एक तो वो हंसते थे जी, दूसरे वो कहते थे मैं अनपढ़ तू PhD यही कहते हैं। मैं उनसे जब आर्ग्यू करता था, एक दिन उन्होंने कहा खालिस्तान कुछ, मैंने कहा खालिस्तान आपकी कल्पना है या कुछ अलग से बनाने की बात है? वो तो कहता है वो देने के लिए तैयार, तो मैं क्यों नहीं लूं? तो मैंने कहा फिर सारा हिंदुस्तान ले लीजिए, सारा हिंदुस्तान दे दो, मैं हिंदुस्तान को ले लूंगा। हाँ, तो ऐसे उनकी जो एक ना उसके दिल साफ थे, ये तो मेरी बात में आई। दूसरा है कि वो किसी को मारेगा क्योंकि उसको मारने की आदत है, ये सब मैं मानता नहीं। तीसरा है कि ये सारे इसमें हरमंदिर में प्रेग्नेंट वुमेन भरे पड़े थे। नॉनसेंस, ये बहुत जुल्म किया। ये जो इस तरीके के इल्जाम जो लगाने, ये एक बहुत दुखदायक है। सबसे ज्यादा इस तरीके के, क्योंकि उसमें कम्प्लेक्स है, उसमें रिहायशी कम्प्लेक्स भी है, उसमें और सरदार बर्दाश्त करेगा ऐसा होगा तो बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा एक जजर टोड़ा ने एक केस भी किया था, जो कि पंजाब से शिफ्ट हो गया, अभी हाई कोर्ट में चल रहा है, जिसके भी 10 करोड़ फीस जमा की है। उसमें टोड़ा साहब ने ये सारा कुछ कहा, उसमें सारे बयान जो दर्ज हैं, उनके तकरीबन 3 साल के दौरान 60-65 पेजेस में वो सारी हरमंदिर साहब की हिस्ट्री जो है, एक किस्म से वो व्हाइट पेपर है। अच्छा। जी, आप उसको भी कभी मैं करूँगा। मैं अभी उस समय ये सब होने के बाद मैं दुखी होकर अलग हो गया था। आपको लगता था कि वो शहादत दे देंगे इस इस मकसद के लिए, अगर कोई ऐसा होगा संजी से, अगर हमला होगा, भागेंगे या नहीं? वो सोचते थे कि ये सरेंडर कर जाएगा। आप क्या सोचते थे? मैं तो यही कहता था ये लड़ेगा। जी, ये तो वीर आदमी है, ये झुकेगा नहीं, बड़ा इतिहास में ये कलंक हो जाएगी हमारे लिए, मत करिए। वो सुंदर जी तो इंदिरा को कहता था नहीं, ये तो बच्चे हैं, लड़के हैं, कुछ नहीं। तो उनकी जिस दिन वो ये खबर आई शहीद हो गए या हुआ, आपके क्या फीलिंग थी उसमें? वो दुखी था, जाने के लिए सोच रहा था, बट सरकार ने उसको नहीं दिया। फिर बाद में मैंने अकाल तख्त की जब फोटो देखी तो बहुत दुखी हुआ, और मैं जाता भी नहीं हूँ कि वो सब यादें आ जाती है। मैं जब कोई सिचुएशन में आऊँगा, जब मैं खुलकर बोल करके ये जो न्याय की बात है, जो हक की बात है, उसको कहकर हिंदू सिख को जैसे पहले कहते थे नगुन नमाज की रिश्ता, उसको वापस लानी है। उसके बिना हिंदुस्तान कभी शक्तिशाली नहीं हो सकती।
आपको ये महसूस होता है पंजाब के हिंदू की सोच में कोई तब्दीली नजदीक भविष्य में आएगी? कोई इसको साफ बोलना पड़ेगा। नहीं, अभी तक तो नहीं आई, अभी आएगी। देखिए मैं क्या फर्क पड़ता है उन पर आई कि नहीं। मैं मेरी बातों में तो वो पहले तो मुझे बहुत गाली देते थे कि तुम भिंडरावाला के साथी थे, ये आप नहीं कहते, मुझसे उल्टा कहते हैं कि आपके हाथ में है इन दोनों को एक करने के लिए। और अब इसको भूलने के लिए मैं तो कभी नहीं कहूँगा, ऐसा कभी नहीं दोबारा होना चाहिए। उसके लिए याद रखते रहना चाहिए, इसको क्लासरूम में पढ़ाना चाहिए जी। और सिखों का जो सेक्रीफाइस हुई है हमारे देश को एक रखने के लिए, उसका ठीक से पढ़ाया जाना चाहिए। और लेकिन मैं सबको कहता हूँ कि हम दोनों का जो भविष्य है, जो फ्यूचर है, वो एक साथ है। क्योंकि ना हमारे पड़ोसी में कोई आपको हमें अलग से मानेंगे और हमें अलग करना है कमजोर करने के लिए, तो इसीलिए एक हो जाए। हाँ, जो हुआ है अन्याय जो हुआ है आपके साथ, इंसाफ, उसके लिए इंसाफ मिलने के लिए लड़ना चाहिए। जिनको फांसी देना चाहिए उनको फांसी मिलना चाहिए, ये सब करनी चाहिए। दिल्ली में जो यादगार 1984 की बनाने की बात हो रही है, उस यादगार बननी चाहिए। उसको कहीं भी बनाओ बट बनाना चाहिए, उसको तो किसी हालत में भूलना नहीं। जी। सरकार इसके लिए कभी जमीन देगी? नहीं सरकार देगी। मैं आपकी सरकार आएगी, मैं आऊंगा सरकार में तो मैं आपको बना के दूंगा। ठीक है। जालियनवाला बाग में बन सकता है तो ये इसका 10 गुना ज्यादा कारण है। तो अगर आपकी सरकार आ जाए, भिंडरावाले का बुत भी दिल्ली में लगेगा? वो नहीं, वो तो आपके गुरुद्वारा में लगा लीजिए। गुरुद्वारे में बुत नहीं लग सकता ना, नहीं तो लगा देते। मुझे लग नहीं सकता, उस समय बात करना मुझसे। ठीक है। आप बहुत बहुत मैं आभारी हूँ आपका, मैं ਤੁਹਾਡਾ शुक्रगुजार हाँ कि ਤੁਸੀਂ इतनी बेबाकी ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ उम्मीद नहीं सी कि स्वामी जी इतने खुल के गल करनगे, पर ਤੁਸੀਂ बहुत चंगा ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ, ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ, ਕੋਈ या ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ जोड़ के अगर कोई गल कहनी चाहो संतां दे? पहले तो मैं ये कहूँगा, हाँ, हिंदू सिख एक खून का है, वो पटेगा तो दोनों का लिए हानि होगा। दूसरा है कि ये जो अकेला देश बनाने की बात है, ये मैं कभी नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं तो सिख के बिना जी नहीं सकता। मैंने भिंडरावाला को भी यही कहा था कि सिख के बिना मैं इस देश की रक्षा कर सकता हूँ, मुझे विश्वास नहीं है। मैंने सिखों को, मैं पार्टीशन के टाइम में, मैं लड़का था, बच्चा, मेरी माँ कहती थी, उस समय हम दिल्ली में रहते थे क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस में वफा, कि कोई बचाएगा तो सिख आएगा, वो आ रहा है। क्योंकि उस समय सिख पार करके नहीं आए थे सीमा को पार, तो वो सिख आएगा तो बचाएगा। हमारे इतिहास में सबूत है, जैसे गुरु टेग बहादुर का, इसको कभी भूल नहीं सकते। तो इसीलिए मैं तो सिख को छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो हम ये अकेला बनाने की बात छोड़ दो, मैं नहीं मानूंगा और मैं करने भी नहीं दूंगा। तो जितना आप लोगों ने बर्दाश्त किया, ये तो कोई मनुष्य साधारण बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन भगवान है, आपके ग्रंथों में भी ये बात है और इंसाफ होगी, और मैं तो इसमें आगे से पूरा लगे रहूंगा। बर्दाश्त भी हद पार कर गया, हाँ। और जुल्म की भी इंतहा। जहाँ जुल्म का तो कोई नहीं, और बर्दाश्त भी, ऐसी चीज को बर्दाश्त करना आपने जितना किया है, वो भी एक सरदारों का एक पहचान हो गई है। क्योंकि कोई और कौम ऐसा नहीं बर्दाश्त करती, वो तो दिलीशुरो जगदीशुरो कह के चुप कर जाते। जी जी, परंतु सरदार के बिना मैं नहीं रह सकता। ठीक, बहुत बहुत मेहरबानी स्वामी जी, तुसी इतना समा दिता ते रियली आपका शुक्रगुजार। धन्यवाद। काली को कमजोर करने के लिए भिंडरावाला को खड़ा करो। भिंडरावाला कहेंगे ये नपुंसक है, ये कुछ नहीं है, ये। बट भिंडरावाला जैसे उसकी पॉपुलरिटी बढ़ी, उसको समझ में आई कि मैं तो अपने पांव पर खड़े होकर प्रवचन कर सकता हूँ, तो ये कांग्रेस से मुझे क्या है जी।
तो कांग्रेस से दूरी शुरू हुई। ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਸਰੋਤਾ ਜਨੋ, ਆਪਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਔਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਹੈਲੋ हेलो जी। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਭੈਣ ਜੀ? कौन बोल रहे? मैं मिसिस रंजीत फीनिक्स एरिज़ोना तो बोल रही हैं नंबर साहब। जी जी जी, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ, ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਟੀਵੀ ਔਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਵੀਰ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਸਰੀ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਸਵਾਮੀ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਜੀ। ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 100% ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਸੋ ਆਪਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਫੀਨਿਕਸ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ 1984 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਸੀ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਨਲਾਈਟਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ 30-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਾਟ ਹੈਪਨ, ਕੌਣ ਰਿਸਪਾਂਸਿਬਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਲਿਆ ਸਕੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਝੂਠ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਏਮਸ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੱਕ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆਈਏ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਫਾਰ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਟੀਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ।
ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਦਿਓਗੇ ਸੁਨੇਹਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਉੱਤੇ। ਜੀ 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 ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਬਰਮਨੀਅਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਰਡਿੰਗ ਨੇ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਮਝ ਗਏ? 21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਬਰ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਕੱਚੀਆਂ ਲੋਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਬਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਸੰਧੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਜੀ, ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਜੋ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਸੀਗਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੈਲੋ 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 ਹੈਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਣ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਗੁਮਨਾਮ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਜੀ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੀਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਬਰਮਨਮ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਰਿਪੀਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਲੰਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੌਣ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਜੀ ਐਵਲੀਨ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਆ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭੰਡਣ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਮਿਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਗਲਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਈਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਬਸੰਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਸਰ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਜੈਨੇਸਿਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੀ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਜੀ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪਿਕਚਰਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਵਨ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੀ ਚਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੀ ਸੀਗੀ।
ਐਂਡ ਫਿਰ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਲੜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸੰਤ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸੰਤ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੈਗਾ ਹੋਲਡ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਲਡ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੋਣ ਸੀ ਕੇਵਲ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ? ਐਨਜੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਤੱਥ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀ ਦਾ, ਜੀ ਜੀ, ਲੂਣ ਮੰਡੀ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਲక్ష్ਮੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਬੜੇ ਹਰਦਿਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਇਹ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ਔਰ ਲੋਕ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਮਸਲਾ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਜੀ? ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ। ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੱਸੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਬਸ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦ ਦਾ ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਆਸ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਯੁਰਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਾਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਿਵਸ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਹੈ, 5 ਵਾਰ MP ਰਹੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਔਰ UNO ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਬਸ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਕੀ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਜੇ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਚਪਲੀਆਂ ਚੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵੜਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਕਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰਸਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਜਿਹੋ ਜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਈਏ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਰਿਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ, ਲਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਆਪ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ? ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ 10-12 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ, ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨੋਟ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਜੇ 5 ਵਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਭੱਜੀ ਉੱਥੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨਾ ਉਹ ਵਿਸਥਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਰਜਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਤੱਥ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਜੀ। ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁਣੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਉਸ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 35 ਹਿੰਦੂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਮਤਲਬ ਮਤਲਬ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਉਲਟੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਸੀ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੱਥ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਛੂਟ ਗਿਓ ਭ੍ਰਮ ਉਰਕਾ ਤਿਸ ਆਗੇ ਹਿੰਦੂ ਕਿਆ ਤੁਰਕਾ। ਸੋ ਇਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਛਾਪਦੇ ਸੀ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਛਾਪਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਜੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਸਿਆਟਲ ਤੋਂ। ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ। ਜੀ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਈਵਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਾੜੇ ਗਏ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਇੱਕ ਆਧਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਫੈਲਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਗਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਗੈਸਟ, ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਣੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਪਣੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਵਿਹਾਰ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਆਚਰਣ ਔਰ ਆਦਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਲਈ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਵਿਰਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਜੀ। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਜੋ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਹ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਅੱਜ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵੀ ਉਹ ਸੰਤ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ। ਧੰਨ ਜੀਓ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਗ ਮੇ ਮੁਕਤੇ ਹਰ ਚਿੱਤ ਮੇ ਜੁਧ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੈਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਥੋਂ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਓਰੀਗਨ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਜੀ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਨਵਾਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ, ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ 1984 ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਪਿਛਾਲ ਕੋਲ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਜੀ, ਔਰ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦੀ ਗੈਸਟ ਪੰਜਾਬੀ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਬੜਾ ਚਾਨਣਾ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਚੀ ਧਰਮ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਜੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। All the best and welcome again, and I will appreciate if you can repeat this again. ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। Thank you for accepting the call. ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਅਖੀਰਲੀ ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮਾਂ ਜਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਲੰਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ, 10 ਸੈਕਿੰਡ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਟਰਮੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ, ਹੈਰੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਲਰਾਂ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹਦੀ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦਾ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8:30 ਵਜੇ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ lamba@getpunjabi.tv। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।